just do that. कर सकते हैं क्या? Can we all be like a little kid for an hour or maybe half an hour? Yes. अभी राजलता जी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, कह रही है ये ना हो पाएगा, ये तो नहीं बताया था. Okay, great. So before we start any session, I always start with one question, and the question is कि हम जीवन में जो भी कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं, whatever we are doing right now or whatever we want to do in life, उसका ultimate objective क्या है? What is the ultimate objective of doing anything in life? Tell me. So who can start? Maybe we can start with Dimple. Yes, Dimple. Can you unmute yourself and tell me? I think I'm unmuted. Can you not hear me? Yes, yes, I can. Yeah, so tell me. Yeah, the question is, whatever you are doing in life or whatever you want to do in life, what is the ultimate objective? What is my ultimate? I'm sorry, I have to join through this web thingy because my video was not turning on in the app. There's something problem. So yeah. For the benefit of everybody, I'll repeat the question कि हम जो भी कर रहे हैं या करना चाहते हैं उसका उद्देश्य क्या है जीवन में? What are we looking for? What is the ultimate objective? So Dimple, I think I don't know. I mean, peace is the correct answer here. Peace. Which peace? P-E-A-C-E or P-I-E-C-E? No, P-E-A-C-E. Right, PAA, right. So Urvashi, what do you have to say? What is the ultimate objective? Can you unmute and say that? Yes. अच्छा, बाकी लोग ना chat में लिख सकते हैं by that time. I'll be able to go over it quickly. I can't see anyone. That's all right. I can't see maximum people. Okay. Yeah. So I think peace is one, but otherwise, of course, contentment, which is maybe not a very good thing also, maybe because if you're content, then you wouldn't want to strive for more. Okay, but, peace and contentment. Peace, happiness, peace, happiness. Yeah, let's keep the answers to 1 or 2 words. Then I'll be able to interact faster, right? Happiness. Yeah, happiness. Okay, Vinay ji, what do you want to say? What is the ultimate objective of doing anything in life? I think to answer it in a word, you can say respectful and happy life. Respectful and happy life. Okay, Anurag, what do you have to say? Wholeness, completeness. Completeness and wholeness. Wholeness. Okay. Rajlata ji, आप कुछ कहना चाहेंगी? Maybe sense of accomplishment and satisfaction. You've done something, achieved something. Okay, sense of achievement and accomplishment. Who are the other people with us today who I cannot see? Monu, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? जी सर. बताएं. सर कोई ऐसी चीज जिससे आपको करने से काफी खुशी होती हो, जैसे मुझे खाना बनाना पसंद है. So जो भी कर रहे हैं अल्टीमेटली क्या है? खुश होने के लिए कर रहे हैं, यही है ना? हाँ. अच्छा, मैं बाकी लोगों से और जब नेक्स्ट सवाल पूछूंगा तो बात करूंगा. सो अगर ये 5-6 लोगों से जो मेरी बात हुई उसमें जो भी हम कर रहे हैं उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एक बार हम ये कह सकते हैं कि दैट वी वांट टू बी हैप्पी. यस, एंड गोल यही है कि हैप्पी, चाहे सक्सेस है, चाहे अकॉम्प्लिशमेंट है, चाहे कंटेंटमेंट है, चाहे कुछ भी है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू बी हैप्पी. राइट? कोई ऐसा है जिसको जो डिसएग्री कर रहा है तो मैं उसको प्रणाम करूं यहां से. राइट? So being happy is the ultimate thing. अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि do you all want to be successful in whatever you are doing or whatever you want to do? ये सवाल ना मैं जब भी किसी कॉलेज में जाता हूँ या किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाता हूँ तो जरूर पूछता हूँ मैं कि do you all want to be successful in life? Yes or no? Yes? कुछ लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है? सबके जीवन में एप्लीकेबल है भाई. Do you all want to be successful? Yes. Yes. Show me a thumbs up then. अच्छा, अब आपने मुझे ये जवाब देना है कि आपके हिसाब से जीवन में किसी भी काम को करने में सक्सेस पाने के लिए क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है? What are the skills that you need to be successful in life? Tell me. कौन बताना चाहेगा? You can write on the chat and you can also tell me by unmuting yourself. Who else is there? Let me see. जिनसे मेरी अब तक बात. Yes,
Vinay ji, hard work, very good. Shomit ji, would you like to say something? और नूपुर जी, शोमित जी, एनीवन, अनुराग जी, आप लोगों से मेरी अब तक बातचीत नहीं हुई है. ओके, उर्वशी सेज हार्ड वर्क. व्हाट एल्स? हार्ड वर्क के अलावा कुछ और? कोई और कुछ कहना चाहेगा? यू कैन राइट ऑन द चैट और यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. पैशन. ओके, उर्वशी सेज डेडिकेशन. सो वी हैव हार्ड वर्क, डेडिकेशन, पैशन. व्हाट एल्स? What else? What else? Quickly, if we can. Anurag, can you say it again? Yeah, being calm, like Being composed. calm. Super. So calmness and composure, right? Then Urvashi comes up with another one. Says zeal. What else? Sir, accept those whatever happiness comes your way, whether it is loss or happiness. You have to accept whatever comes your way. So you Okay, have to be patient. You acceptance. have to be very much patient, even if it is you are in the So patience failure. and acceptance, You should not right? be. You should not be carried away by the failure in your life. You should accept the Okay. failure and move on. So I'll say patience, acceptance, equanimity, right? Right, sir. ठीक है. और कोई कुछ ऐड करना चाहता है इसमें? नहीं. चलो, let's close this question here. Let's just reflect on these two aspects. आपने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने कहा the ultimate objective of doing anything in life is happiness. ठीक है. अब आपने मुझे बताया कि in order to be successful, what all things are needed? Hard work, passion, dedication, zeal, equanimity, acceptance, and all these things. अच्छा, आप मुझे ये बताओ, ये सारी चीजें कहाँ पे होती? Where are all these things? ये आपके अंदर है या ये कहीं बाहर से मिलती? Inside or outside? Yeah. Anyone else? It's inside all of us. You know? Yes. अभी कोई ये कह सकता है कि यार आज मैं कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा, चल बाहर दुकान से, किराने की दुकान से 2 किलो कॉन्फिडेंस खरीद के लाता हूँ? नहीं ना. कोई ये कह सकता है कि मेरे पास आज जील की कमी है, तो चल आज मॉल में चल के किसी अच्छी सी दुकान से जील लेके आते हैं, अच्छी ब्रांड की. कोई ये नहीं कह सकता कि पैशन जो है वो किसी पड़ोस की दुकान से मिलेगा. Where is it all happening? These all qualities or these are all skills which we can broadly classify in a skill set called life skills are there in each one of us. Funny, किसी ने ये नहीं कहा कि हमें की जरूरत है या डोमेन नॉलेज की जरूरत है. किसी ने नहीं बोला. सक्सेसफुल होने के लिए मुझे या डोमेन नॉलेज की जरूरत है. एक भी व्यक्ति ने नहीं बोली ये बात. दिस वेरी, ये एक यूनिवर्सिटी रिसर्च में पाया गया. स्टैनफोर्ड में एक रिसर्च हुआ ऑन अराउंड 10,000 पीपल, सक्सेसफुल पीपल अक्रॉस द ग्लोब, और उनसे पूछा गया कि आपके सक्सेस में किन चीजों का योगदान ज्यादा है, लाइफ स्किल्स या डोमेन नॉलेज का. तो astonishingly they said the contribution of life skills in my success is approximately 87.5% and domain knowledge is 11.5%. और हमारे जीवन का पैटर्न उठा के देखो, हमने सबसे ज्यादा समय, ऊर्जा और जीवन, पैसा सबसे ज्यादा किन चीजों में लगाया है? Acquiring domain knowledge. Yes or no? Yes. How much time have we actually spent on finishing or fine-tuning our life skills? Did we ever think about it? Basically, Monu ji, can we put everybody on mute? There is a lot of background noise. देवांग जी, कोई जो बात नहीं कर रहा है प्लीज एक बार म्यूट पे डाल देंगे आप लोग. Yeah, coming back. So again, the thing is that if I need to work on my life skills, what do I need to do then? If it is inside me,
how do I work on my life skills? And the second aspect that we spoke about was I want to be happy, right? Everybody wants to be happy at the end of anything and everything. अब ये जो happiness है ये भी कहीं बाहर है कि अंदर है? बताओ, ये happiness भी कहीं बाहर है कि अंदर है? First या second? You can just show me पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन? बाहर है? बाहर है कि अंदर है? अंदर है, right? It is right inside. But where are we looking for happiness? We are looking for happiness all the time outside. लेकिन है अंदर. अभी ये तो यार झोल हो गया जीवन में. मैं तो अभी तक ये सोच रहा था कि मेरे को रसगुल्ला मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, या मेरे को गाड़ी मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, या मेरे को अच्छी लड़की मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा. But what is happening? The moment one desire gets fulfilled, the other one comes up. Yes or no? So the happiness is not connected to fulfillment of a desire. Happiness is something inside. Now, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. ये बड़ा फनी एग्जाम्पल है. आप एक चीज देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं. यहाँ पर मुझे अभी स्क्रीन पे दो लोग मेरे सामने नजर आ रहे हैं कि उर्वशी और डिम्पल. सो उर्वशी एंड डिम्पल, अच्छा, इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं. इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, तो आप दोनों प्लीज ऑफेंड मत होना, ठीक है? सो उर्वशी और डिम्पल जो है ना, दोनों एकदम पक्के दोस्त हैं, ठीक है, बचपन से. दे शेयर एवरीथिंग इन लाइफ. एक दिन क्या होता है, तो माइथोलॉजिकल सीरीज में देखा है कि वो तपस्या करते हैं, भगवान प्रकट होते हैं और कुछ तो वरदान देके जाते हैं. मैं भी जैसा एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ. डिम्पल कहती है ओके गो अहेड, योर कॉल. सो उर्वशी ना तपस्या करती है, घोर तपस्या. तो भगवान प्रकट होते हैं, कहते हैं कन्या मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे, कहो 3 वर देता हूं, लेकिन एक ही दिन में वो अवेल कर पाओगी वो 3 चीजों को. तो क्या चाहिए तुम्हें? सो उर्वशी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? Yeah. So, who's your favorite hero? Bollywood or Hollywood? I mean, you would be Any. I'm giving open option to you. Tell me. So Bollywood would be Hrithik Roshan. Okay. So, if I say you would like to go on a dream date with Hrithik Roshan, will that be okay? Out of the 3 wishes, I wouldn't wish for that. That is, I would wish for something bigger than that. ये मेरी कहानी है. Let me say this, okay? So, Urvashi wants to go on a dream date with Hrithik Roshan. Which is your dream car? For now, Lamborghini. Okay, Lamborghini. Can we say fluorescent yellow? Will that be fine? It would be Yeah. Fluorescent yellow Lamborghini. ठीक है? तो भगवान से उर्वशी कहती है कि भगवान मेरे को एक दिन के लिए, एक तय दिन पे मुझे ऋतिक रोशन के साथ फ्लोरोसेंट येलो लैम्बोर्गिनी पे डेट पे जाना है, फुल डे, बिफोर द सनराइज टिल आफ्टर द सनसेट, एंड प्लान विल बी माइन. तो भगवान क्या कहते हैं? तथास्तु. सो उर्वशी बहुत खुश हो जाती है. उस तय दिन पे लैम्बोर्गिनी की चाबी, ऋतिक रोशन का एड्रेस और मोबाइल नंबर, सब कुछ उर्वशी के पास आ जाता है. एंड उर्वशी goes in her Lamborghini to Hrithik's place to pick him up right before the sunrise, and Hrithik Roshan is standing there in all his glory with open arms saying, Urvashi, I've been waiting for you. अभी उर्वशी के मन में क्या होगा? अभी देखो, सोच के ही लड्डू फूट रहा है, बाकी छोड़ दो, सोच के ही लड्डू फूट रहा है. अब क्या होता है कि इसके बाद उर्वशी being a nice girl, she opens the door, Hrithik Roshan को बिठाती हैं, they go for a long drive to a place where they can see a romantic sunrise. हरी भरी वादियां हैं, खूबसूरत समा है, ठंडी हवा चल रही है. एक पहाड़ी आती है जहां पर दोनों जाके बैठ जाते हैं. उर्वशी का सर ऋतिक के कंधे पे है और एक परफेक्ट सिचुएशन है, परफेक्ट सीनरी, परफेक्ट व्यक्ति, परफेक्ट गाड़ी, परफेक्ट सिचुएशन, सब कुछ परफेक्ट है एकदम. अचानक से क्या होता है? अभी आजकल हमारे जीवन रूपी यज्ञ में सबसे बड़ा असुर कौन है? क्या है जो सबसे ज्यादा खलल मचाता है हमारे जीवन में आज की डेट में? कोई बता सकता है? एनीवन? ना 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 ना, आई एम टॉकिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट.
जो सबसे ज्यादा क्या ओके राइट, मोबाइल फोन। तो क्या होता है इस परफेक्ट सिचुएशन में, उर्वशी का मोबाइल बजता है, उर्वशी फोन उठाना चाहेगी, यस और नो? नो नहीं। लेकिन क्या होता है, अननोन नंबर है, उसी अननोन नंबर से 3 बार 4 बार फोन बजता है। नाउ उर्वशी थिंक्स दैट देयर माइट बी सम अर्जेंसी, लेट मी पिक अप द फोन, ऑल्दो शी इज रियली अपसेट राइट नाउ कि ये इसमें ऐसा कैसे हो सकता है इस सिचुएशन में। शी पिक्स अप द फोन और सामने से एक अजनबी व्यक्ति की आवाज आती है कि आपकी बेस्ट फ्रेंड डिंपल जो है ना, शी अनफॉर्चुनेटली मेट विद एन एक्सीडेंट and we can't say if things will be really okay, so can you please come as quickly as possible? Now you tell me, after this phone call, how is Urvashi feeling? What are the feelings inside Urvashi, thoughts or feelings at that time after the phone call? Tell me. so I'll be very sad and upset. Sad and I'm upset. very Okay, concerned. okay, concerned. What else? Dimple, would you like to add something? Wouldn't you like to just run from there, Urvashi, and come to me? Yeah, so Of course, Should yes, it be your first thought? that Anurag, was you were without saying saying. Anurag, you were saying something? Worried. Of course, Worried, negative okay. thoughts. या नेगेटिव थॉट्स। लेकिन एक बात बताओ यार, एकदम परफेक्ट सीनरी है, परफेक्ट व्यक्ति है, परफेक्ट गाड़ी है, सब कुछ परफेक्ट है, ये नेगेटिव क्यों थॉट हो गई अचानक? व्हाट चेंज्ड? Emotions changed. इमोशंस ने क्या चेंज किया? It got a different sense of feeling altogether, a feeling of Yes. somewhere lost. I mean, it's all about what you think. It's all about thoughts. I started thinking about something sad and upset that, okay, my best friend is in. Hold on to that. Hold on to that thought. Just understand where I'm leading you right now. आप एक ऐसी जगह पे हैं जिससे खूबसूरत जगह कोई नहीं हो सकती। आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो आपके अनुसार परफेक्ट व्यक्ति है। आप एक ऐसी सीनरी देख रही हैं जो परफेक्ट है, एक गाड़ी है, सब कुछ परफेक्ट है, आप उसके बीचों बीच हैं उस समय। लेकिन बदलाव कहां आ गया जिसकी वजह से ये थॉट्स और इमोशंस आ रहे हैं? वेयर द चेंज हैज हैपेंड, वेयर दैट शिफ्ट केम? Mind. Excellent answer. It is the state of mind which changed. तो क्या है बेसिकली कि मैं परफेक्ट लोगों के बीच हो सकता हूं, मैं परफेक्ट सिचुएशंस में हो सकता हूं, लेकिन अगर मेरा स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं है, I cannot enjoy that perfect situation or person. Yes or no? Yes. वहीं हम सबने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस किया है कि हम कितनी भी कठिन परिस्थिति में थे या कितने भी घामड़ व्यक्ति के साथ या बीच में थे, लेकिन यदि मेरा मन शांत था उस समय, तो मैं उस परिस्थिति और व्यक्ति से अच्छे से डील कर पाया और मैं कर पाया जो करना चाह रहा था। यस और नो? यस। सो व्हाट इज द बेसिक थिंग? द क्वालिटी ऑफ माय लाइफ डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ माय माइंड। मेरे जीवन की गुणवत्ता जो है वो मेरे मन की क्वालिटी पे निर्भर है। मेरा मन यदि अच्छा है तो मेरा जीवन सुंदर है, मेरा मन यदि अच्छा नहीं है तो वो कुछ भी हो मेरे पास फिर भी नहीं हो। अब जैसे क्या है, आपने हमेशा देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जिनके जीवन में सारी सुख सुविधाएं होती हैं लेकिन फिर भी क्रिप कर रहे होते हैं। यस और नो? यस। वो क्या है? इट इज बेसिकली द स्टेट ऑफ माइंड। और कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत अभाव होता है जीवन में सुख सुविधाओं का, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है। यस। वो क्या है? इट इज द स्टेट ऑफ माइंड। It is ultimately the state of my mind which regulates the quality of my life. So what do I need to do in order to improve the quality of my life? I need to work on the state of my mind. And the second aspect, जो आपने कहा life skills के बारे में बात की, you know, all the life skills that we spoke about, चाहे वो confidence होता है, focus होता है, passion होता है, जो भी चीजें हैं, they are all originating and blossoming in a calm and happy state of mind. क्यों?
अभी कौन है जो मेरे मन की शांति को ले जाता है? क्या चीज है वो? मेरे थॉट्स और मेरे इमोशंस. यस और नो? वी गेट स्वेड अवे बाय आवर थॉट्स एंड इमोशंस. अभी जीवन कैसा है? अभी मेरा जीवन ऐसा है कि मेरे थॉट्स और इमोशंस हैव अ होल्ड ऑन मी. लेकिन जीवन कैसा होना चाहिए? आई शुड बी एबल टू रेगुलेट माय थॉट्स और इमोशंस. यस और नो? यस. माय लाइफ शुड बी ड्रिवन बाय मी एंड नॉट बाय माय थॉट्स एंड इमोशंस. तो ये थॉट्स एंड इमोशंस जो है वो हमें हिला देते हैं. जैसे ही हिला देते हैं तो क्या होता है? अभी देखो, जैसे आप लोग यहां बैठे हो ना, अभी मुझे सुन रहे हो, तो आपके अंदर कुछ तो है जो चल रहा है. अच्छा, ये कितनी देर बोलने वाला है? अच्छा, कितने बजे खत्म होगा? अच्छा, खत्म होने के बाद मुझे क्या करना है? लंच बनाना है या खाना है? अच्छा, आज शाम को क्या प्लान रहेगा? मेरे को ये काम निपटाना है या ये मीटिंग है? या फिर मेरा मन कहां जा रहा है? मेरा मन जा रहा है जो कोई चीज ऑलरेडी हो चुकी है. आज सुबह उसने मुझे ये कहा, क्या उद्देश्य रहा होगा इसने ये कहा तो? या इसने ऐसा क्यों कहा, या इसने ऐसा क्यों किया, या ऐसा क्यों हुआ? तो क्या है? मेरे मन की क्या प्रवृत्ति है कि जहां मेरा शरीर है वहां पे वो कभी नहीं टिकता. वो या तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा. और जब हमारा मन आगे जाता है, जब भी हम आगे के बारे में सोच रहे होते हैं, तो क्या चल रहा होता है मन में? कोई प्लानिंग चल रही होती है, या कुछ हमारे ऐसे विचार चल रहे होते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो जाए, ऐसा होगा या नहीं होगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. यस और नो? दीज आर द थॉट्स रिलेटेड टू द फ्यूचर. तो जब हम इन चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं, व्हाट आर द काइंड ऑफ इमोशंस दैट आर कमिंग इनसाइड यू? जब आप सोच रहे हो तो क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो कैसे इमोशंस होते हैं? कैन यू शेयर? You can share on the chat. Anxiety, yes, excellent. Yeah. Yes, Anurag? Yeah, I was going to say the same thing. Anxiety, fear, can we say? कि कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? Fear, anxiousness, anything else you would like to share? अच्छा, चलो, fear and anxiety को अभी रखते हैं. और जब मैं पीछे का सोच रहा होता हूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, होना नहीं होना चाहिए था, अनसर्टेनिटी. ओके, उर्वशी सेड अनदर थिंग, अनसर्टेनिटी. जब मैं पीछे का सोच रहा, याद आ रहा होता है मुझे जो हो चुका है, उस समय पर कैसे इमोशंस आते हैं? सैडनेस, रिग्रेट, एक्सीलेंट. या अनुराग? Yeah, it's kind of related to regret only. Guilt maybe, Yes. or regret, anger and sadness, right? अच्छा, इसमें एक और मजेदार चीज है. कुछ लोग कहते हैं मेरे को इसके आंसर में कि अरे पीछे की बातें याद करके मुझे खुशी भी होती है बहुत. एक बात बताओ, अगर आप पीछे की बातों को ग्लोरीफाई करके खुश हो रहे हो ना, तो इसका मतलब एक अंडरलाइंग एक थीम है कि आज जो चल रहा है ना जीवन, वहां कुछ ना कुछ 19-20 है, इसीलिए पीछे वाले को याद करके सोच रहे हो वो अच्छा था. इफ यू आर ग्लोरीफाइंग योर पास्ट and are feeling happy about what was, then that means there is definitely something which is not okay according to you in this moment. तो क्या है? Regret, anger, sadness. These are the set of emotions जिसके बीच में हम झूलते रहते हैं. हमारा मन इनके बीच में झूलता रहता है. तो यार, जब मन हमारा इन दोनों के बीच में पेंडुलम की तरह झूलता रहेगा, तो क्या आपका मन जहां आपका शरीर है वहां टिकेगा क्या? नहीं. जब मेरा शरीर के जहां है वहां मन नहीं टिकेगा, तो क्या कंसंट्रेशन और फोकस हो सकता है क्या? नहीं. क्या क्लैरिटी ऑफ थॉट हो सकता है क्या अगर आप फियरफुल, एंग्शियस हो या रिग्रेटफुल और एंग्री हो? नहीं. अगर क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, तो क्या कम्युनिकेशन आप बेटर कर सकते हो? क्या आप जो कर रहे हो उसमें एफिशिएंट हो सकते हो? नहीं. बेसिकली पॉइंट क्या है? द पॉइंट इज, वेयर इज लाइफ हैपनिंग? इज इट हैपनिंग इन फ्यूचर और पास्ट? नो. वेयर इज इट हैपनिंग? इट इज हैपनिंग इन दिस वेरी मोमेंट. Life is happening in this very moment. You can plan for the future, but you have to live in the present. You can learn from the past, but I have to be in the present. Are you getting what I'm saying? So the key, और एक और बात बताता हूं, हमारे जीवन में स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण जो है वो क्या है? मेरे मन को मैं वर्तमान में नहीं रख पाता हूं.
वो भी स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जब मैं इस साइड के इमोशंस में अटकता हूं तो मेरे को उस तरह का स्ट्रेस मिलता है, जब इस साइड के इमोशंस में अटकता हूं वहां से भी स्ट्रेस आता है, और जब मेरे शरीर में स्ट्रेस आता है, एक्यूमुलेट होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ इमोशनल गार्बेज which eventually becomes toxins, and also it affects your physical health because it turns into diseases. There is a research, medical research hai, 95% of our diseases are more psychosomatic. Psychosomatic means our mind body association. यदि मेरा मन और शरीर को मैं स्वस्थ रख सकता हूं तो 95% बीमारियां मुझे परेशान करेंगे ही नहीं। तो क्या है बेसिकली, यदि मैं मन को वर्तमान में रख पाऊंगा तो मेरे अंदर वो सारी चीजें एक्यूमुलेट ही नहीं होंगी। लेकिन अगर एक्यूमुलेट हो रही हैं तो मैं क्या करूं? दैट इज वेयर द स्किल इज। क्यों? जैसे क्या होता है, हमारे सबके घर में डस्टबिन होता है, राइट? यस, सबके घर में है। अभी कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं मेरे को कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहा है। सबके घर में होता है ना यार? हाँ। अभी हर सुबह वो डस्टबिन को, कचरे के डब्बे को खाली करते हो ना, बाहर कचरा इकट्ठा करने आता है कोई तो उसको दे देते हो ना। कोई ये तो नहीं कहता ना ना ये तो मेरा है, इसको संभाल के रखूंगा, ये तो कोई नहीं कहता। आप ये तो नहीं कहते ये मेरा केले का छिलका है, इससे मैं अपने घर की दीवार सजाऊंगा, नहीं ना। जब सुबह उठते हो, उठने के बाद प्रेशर बिल्ड होता है और परफॉर्मेंस देने जाते हो अपनी, तो परफॉर्मेंस पूरी होने के बाद फ्लश चलाते हो ना, यस और नो? यस। अभी ये तो नहीं कहते ये मेरी है, इसको नहीं जाने दूंगा, नहीं ना। सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, जितना भी कचरा है उसको हम या तो फ्लश आउट कर देते हैं या हम बाहर डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। लेकिन ये जो इमोशनल कचरा है, जिसे हम स्ट्रेस भी कहते हैं, इसको फ्लश आउट करने के लिए तो हमने कुछ सीखा ही नहीं। और इसको फ्लश आउट करने के लिए हमारे पास एक बहुत पावरफुल टूल है, हमारे अपने ही पास है। वी हैव टू जस्ट लर्न अ लिटिल बिट अबाउट इट। अच्छा, आप मुझे बताओ कि अभी हमने देखा कि मन मेरा नहीं रहता वर्तमान में, शरीर हर समय वर्तमान में होता है, लेकिन हमारे अंदर एक चीज और है जो हर क्षण, एवरी मोमेंट इट इज इन द प्रेजेंट मोमेंट, एवरी मोमेंट इट इज कंटिन्यूअसली इन द प्रेजेंट मोमेंट, हमारे ही अंदर है। कैन यू टेल मी व्हाट इज इट? कोई बता सकता है? हाँ बताओ अनुराग। Body. Body is, yeah, body is there, but there is something which is all the time in the present moment, which is not as gross as body. Consciousness. ओ भाई साहब, खतरनाक शब्द है ये तो, कॉन्शियसनेस। और कोई कुछ कहना चाहेगा? डिंपल, डू यू वांट टू कंट्रीब्यूट? डिंपल कह रही है आई गिव अप। I don't know. Yeah. ओके, मोनू आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे ही अंदर कुछ है जो हर समय वर्तमान में है। उर्वशी, सोल। उर्वशी, देयर आर 2 types of souls, one is SOUL and the other one is SOLE. राइट? हाँ मोनू, कुछ कहना चाहोगे? ओके, मोनू जी अटक गए स्क्रीन पे, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हाँ अच्छा, हर समय है वो प्रेजेंट में। कोई कुछ और लिखना चाहेगा? इफ एनीवन वुड लाइक टू राइट समथिंग, इफ और अनम्यूट योरसेल्फ एंड से आई रियली वांट टू रिफ्लेक्ट ऑन इट। सबके पास है भाई, हर मोमेंट। सोल नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है। माइंड बोल रहे हो आप या हार्ट? माइंड तो चल रहा है, वो तो बेचारा झूल रहा है। Okay, since nobody is coming out with that answer, it is our breath. Urvashi, thoughts are always in future or in past. It is our breath which is always in the present moment. अभी देखो, कोई ये कह सकता है कि भाई आज बहुत ले ली, बाकी कल लूंगा सांस? कोई कह सकता है क्या? नहीं। कोई ये कह सकता है कि अब तक जितनी ले ली बहुत है जीवन चलाने के लिए, बाकी नहीं लेने की जरूरत?
So you can never breathe in the future, nor can you breathe in the past. You are always breathing in the present moment. And you know what? The tool, the link between our body and mind is our breath. हमारे शरीर और हमारे मन के बीच का जो कड़ी है वो क्या है? वो है हमारी श्वास. एंड इट इज सो पावरफुल. आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू. अभी देखो ये बहुत अमेजिंग है. दिस इज लाइक अ सीक्रेट वेपन. आपने कभी नोटिस किया है कि आपके हर एक इमोशनल या थॉट पैटर्न के साथ आपका ब्रेथ पैटर्न भी चेंज होता है? नोटिस किया है कभी? जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी श्वास कैसे चलती है? छोटी और तेज. यस. जब हमें बहुत दुखी होते हैं, वी आर फीलिंग मिजरेबल, तब कैसी होती है? इट्स हैवी एंड मे बी अ लिटिल लॉन्ग. व्हेन वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्सटैटिक तो कैसी होती है? इट्स वेरी सटल. जब बहुत खुश होते हैं ना तो इतनी सटल होती है कि हमें आभास भी नहीं होता कि सांस आ जा रही है. और जब हम बहुत जोश में होते हैं, यस, सेंस ऑफ अचीवमेंट, उस समय सांस कैसी होती है? जोश से भरी हुई, एकदम यू नो ऐसे पावरफुल ब्रेथ होती है एकदम. बेसिकली क्या हो रहा है? हर थॉट या इमोशन के साथ मेरी श्वास का पैटर्न भी, इसका विपरीत भी उतना ही सही है. यदि मैं जानता हूं कि मैं अपनी श्वास को कैसे रेगुलेट कर सकता हूं, मैं अपने थॉट्स और इमोशंस को भी रेगुलेट कर सकता हूं. I know how to utilize this tool called I am in a position to regulate the state of my mind. Are you getting what I'm saying? Can you connect to this? Yes? The secret lies in our breath. अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछूंगा इससे पहले कि इस्तेमाल कैसे करते हैं. कुछ thumbs up, thumbs down, say something in chat, write something in the chat. Otherwise, it will be a futile exercise. Your voice is breaking, sir. My voice is breaking. Okay. मेरे स्क्रीन पे सब लोगों का. Okay. Could not get your question. Am I audible right now? Okay. So the question was, would you like to know how you can utilize your breath to improve the state of your mind? जानना चाहते हैं या आज इतनी जानकारी ही काफी है कि किया जा सकता है? हाँ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव क्यूरियोसिटी. अच्छा, एक छोटी सी गेम खेलेंगे क्या सब? कैन वी ऑल प्ले अ स्मॉल गेम? बहुत इजी है ये गेम. करना क्या है, जो लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, अभी कोटनी जी तो अपनी गाड़ी में है, वो ये गेम नहीं खेल पाएंगे, लेकिन बाकी सब लोग ये गेम खेल सकते हैं. आपको एक छोटे बच्चे की तरह इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी होगी. आपका फोन जहां पे भी है आप उसको वहीं छोड़ दीजिएगा. व्हेन आई से रेडी स्टेडी गो, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रन टू योर मेन डोर. आपको अपने मेन डोर की तरफ भाग के जाना है. जितनी तेजी से भाग सकते हो उसे टच करना है. उसके बाद अपने घर के रेफ्रिजरेटर को टच करना है और जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी भाग के वापस आना है आपको. ठीक है? क्लियर है इंस्ट्रक्शन? ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो, रन. ओके, कुछ लोग तो अब उठ के गए हैं. ग्रेट. उर्वशी स्टिल नॉट बैक. डिम्पल वेंट आफ्टर एवरीबडी केम बैक. ओके. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जितने लोग वापस आ गए. ओके, उर्वशी इज आल्सो बैक. आई कैन सी ओनली दीज मेनी पीपल. विनय जी इज बैक. अच्छा, एक बात बताओ,
जब मैंने कहा कि एकदम ऐसे भाग के जाना है और जल्दी से भाग के आना है, तो व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट केम टू योर हेड? मतलब क्या फीलिंग थी सबसे पहले? क्या फीलिंग आई जब मैंने कहा कि ये गेम खेलनी है? व्हाट वाज द वेरी फर्स्ट फीलिंग दैट केम? बताओ राजलता जी, आप बताना चाहेंगी व्हाट वाज द फर्स्ट फीलिंग दैट केम टू यू? फर्स्ट फीलिंग ये थी, करके वापस आओ, पहले जस्ट डू इट एंड कम करके बैक। वापस आओ। किसी को ये लगा ये क्या वियर्ड सी गेम खिलवा रहा है? किसी को लगा क्या? अच्छा, कैन यू ऑल हियर मी? सुन पा रहे हैं मुझे? ओके, सो मैं ये पूछ रहा हूं कि कितने लोगों को ये लगा ये क्या वियर्ड सी गेम खेलने को कह रहा है? वियर्ड वाली फीलिंग किसको आई? यस और नो? मुझे पता है डिंपल को तो जरूर आई, बाकी लोग मदन सर, आपका वॉइस ब्रेक हुआ है 20 सेकंड के लिए। Oh, this is becoming a bit difficult. क्या क्या सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं? बहुत अटक रहा है यार। वो लिरिक्स है, कहाँ से है ये? दोनों, ये नेटवर्क का प्रॉब्लम मेरे एंड से है या आपके एंड से है? सर ये आपके एंड से लग रहा है, बिकॉज ये अनुराग जी, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? मेरी वॉइस आ रही है ठीक से? मोनू, आपकी आवाज क्लियर आ रही थी। आई थिंक नवीन जी की आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही थी, और उसी टाइम पे ब्रेक हो रही थी जब बाकियों की भी शक्ल से लग रहा था कि उनको भी नहीं समझ आ रहा या दिख नहीं रहा। अभी ठीक है, अभी कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी ठीक हुआ है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा थोड़ा वो शफल हो रहा है। ओके 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 ओके। सो जितने लोगों ने किया, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने किया या नहीं किया, जितने लोगों ने वो किया उसको उस मोमेंट पे, एट दैट वेरी मोमेंट, जैसे ही आप वापस आए, व्हाट वाज द फीलिंग लाइक आफ्टर हैविंग प्लेड दैट गेम? उस समय क्या फीलिंग आ रही थी? आई मीन आई कुड सी वन कॉमन थिंग इन ऑल द पीपल। हाँ, विनय जी और अनुराग के चेहरे पे अभी भी वो नजर आ रहा है क्या? एक स्टूपिड सी स्माइल है चेहरे पे। Actually, to me, it was like something good is gonna happen because we are doing something good, and you have told, so we have to do it, and something will good come out because we are trying to achieve something good. Yeah. So अभी एक चीज जो मैं जानना चाह रहा हूँ, ये कर देने के बाद, एक बार जब कर दिया तो एकदम से क्या फीलिंग थी? How are you feeling after doing that? Were you feeling happy? Was it a happy state? Yes. एक स्माइल थी चेहरे पे? Yes, because it was an unusual thing, and कुछ ऐसा लग रहा था, लेकिन एक हैप्पी वाली फीलिंग थी क्या? अभी एक फनी सी चीज करी, यू प्लेड द मोस्ट फनी एंड द सिली गेम इन द वर्ल्ड, बट देयर वाज अ स्माइल ऑन योर फेस। अभी वो स्माइल क्यों थी? वो स्माइल पता है क्यों थी? क्योंकि आप सिर्फ उस चीज को कर रहे थे, कुछ सोच नहीं रहे थे कि इसके बाद क्या होगा या इससे पहले क्या हुआ। क्या था? मन वर्तमान में था, मन वर्तमान में था, इसलिए ऑटोमेटिक एक स्माइल थी। Again, re-emphasizing the point, when the mind is in the present moment, you are automatically happy. Now comes the question, how do I bring it back in the present moment? As I said, I can use that tool called my breath. अभी breath को कैसे use करते हैं? Breath को use करने का एक बहुत आसान तरीका है. Since I don't have too much of time, so I will just quickly share it with you. ब्रेथ को यूटिलाइज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? वी कैन डू समथिंग कॉल्ड प्राणायाम। व्हाट कैन वी डू? प्राणायाम। अब प्राणायाम क्या होता है मुझे पता है, जैसे मैं प्राणायाम वो सामने विजुअल आता है, बाबा रामदेव जी कुछ तो प्राणायाम कर रहे हैं, उनका पेट भी गोल गोल घूम रहा है, बट
प्राणायाम सैकड़ों प्रकार के होते हैं, सैकड़ों प्रकार के प्राणायाम होते हैं. आई विल बी शेयरिंग वन प्राणायाम विद यू जिसे हम एक इंस्टेंट एनर्जाइजर कहते हैं. When we do 3 rounds of this pranayam, it gives you a lot of energy and you can do it any time of the day. ठीक है? So इस प्राणायाम को हम क्या कहते हैं? अच्छा पहले समझ लेते हैं प्राणायाम है क्या. प्राणायाम is made up of 2 words, प्राण plus आयाम. प्राण माने life force energy and ayam means give direction or channelizing. So when the life force energy inside us is flowing upwards, that's when we feel positive, good, happy and strong. Whereas when that life force energy is flowing downwards, that's when we feel negative, low, not so good, we don't feel like doing anything. ऐसा हमारे साथ होता है ना, किसी दिन हम सुबह उठते हैं तो क्या होता है, मन अगर अच्छा है तो उस दिन कैसा होता है, मैं मुस्कुराहट के साथ उठता हूं, घर वालों को भी मुस्कुराहट देता हूं, उन्हें भी देख के लगता है आज कुछ तो गड़बड़ है भाई, ये मुस्कुरा रहा है. बाहर निकलते हैं तो अड़ोस पड़ोस वालों को भी मुस्कुरा के मिलते हैं, ऑफिस भी जाते हैं तो खुशी खुशी जाते हैं और काम भी बहुत अच्छे से होता है और वापस भी आते हैं तो थकावट कम होती है उस दिन. लेकिन किसी दिन क्या होता है, आत्माजी सटक ली, मतलब बिना किसी कारण उठे हैं लेकिन मन अच्छा नहीं है. उस समय पे क्या है, आप किसी को मुस्कुराना छोड़ो, कोई और मुस्कुरा रहा होगा तो उसकी मुस्कुराहट भी छीनने का काम करोगे. ये पागल हो गया, मुस्कुरा क्यों रहा है, isn't it? And the day becomes so heavy and like a drag. तो बेसिकली क्या हुआ है, what has happened कि मेरी एनर्जी जब लो होती है, that's when I say, oh I don't feel like doing this, I don't feel like talking, I don't want to do this, I want to just vegetate. My efficiency goes down. But when my energy level is high, that's why when I am feeling super enthusiastic and willingness is there, passion is there, everything is there. ऊर्जा का खेल है कि ऊर्जा ऊपर है तो पॉजिटिव है, नीचे है तो नेगेटिव है. तो प्राणायाम करने से क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं. सबसे पहले I am able to channelize my energy. Second, I am able to expand my lung capacity. अभी क्या हो रहा है, I am only able to utilize 30% of my lung capacity. This is an average for most of us, that we are able to utilize only 30% of our lung capacity. तो उससे क्या हो रहा है, क्योंकि लंग कैपेसिटी कम इस्तेमाल हो रही है तो मेरे अंदर ऑक्सीजन कम जा रही है, उसके एज अ रिजल्ट एनर्जी लेवल कम है और साथ में रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम है, फिटनेस लेवल्स भी उतने अच्छे नहीं है. एक एथलीट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 75 to 80% अपना लंग कैपेसिटी का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन हम केवल 30% कर पाते हैं. But when we learn these techniques like pranayam or sudarshan kriya, what we do is we are able to expand our lung capacity and become better on mind and body level both. When I ask you, do you all want to be happy? Everybody says yes. According to me, the definition of being happy is having a healthy body and a happy mind. Yes or no? Yes. Healthy body and a happy mind. So how does breath come into play? Breath is the biggest source of energy. Biggest source of energy. अभी एक एथलीट जो है उससे अगर हम अपने आप को कंपेयर करें तो फिटनेस लेवल में अंतर है, यस. एफिशिएंसी लेवल में अंतर है, यस. मन की शक्ति में भी अंतर है, राइट. एक कमाल की बात बताता हूं, एक स्वस्थ शरीर भी आप तभी पा सकते हैं. कुछ लोग होते हैं जो नेचुरली गिफ्टेड होते हैं, लेकिन स्वस्थ और अच्छा मजबूत शरीर पाने के लिए भी एफर्ट करना पड़ता है, और वो एफर्ट करने की क्षमता और शक्ति भी जो है वो भी मन की शक्ति से ही आती है. You can have a healthy body also if you have a happy mind. A happy mind can drag an unhealthy body, but a healthy body cannot drag an unhappy mind. Just remember that. आप हो सकता है नेचुरली गिफ्टेड हो हेल्दी बॉडी से, लेकिन मन अच्छा नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं है. So that's why I call this
mind matters. That's why I say at the end of the day, what matters is your mind. I need to work on my mind and get my health and efficiency and all my life skills going for me. So let's see how can I do it. तो मैं इसके लिए आपको एक बड़ा इजी सा प्राणायाम सिखाऊंगा, ठीक है? इसके लिए क्या करना है, यू कैन जस्ट प्लेस योर मोबाइल और लैपटॉप इन फ्रंट ऑफ यू एंड जस्ट आप अपनी आर्म्स और हैंड्स को फ्री कर लें बस, एंड जहां पे भी बैठे हैं कंफर्टेबली बैठे विद योर बैक स्ट्रेट. अभी मुझे आप देखेंगे, एक बार देख के करेंगे, उसके बाद हम आंखें बंद करके करेंगे, ठीक है? सो एज आई सेड, इट्स एन इंस्टेंट एनर्जाइजर. दिस वन इज कॉल्ड भस्त्रिका प्राणायाम, ठीक है? ये कैसे करते हैं? इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये है, ढीली मुट्ठियां कंधों के आगे और कोहनियां जो है, लेट मी जस्ट डू दिस, कोहनियां शरीर के पास, ये पोजीशन. शोल्डर्स आर रिलैक्स्ड. अभी शोल्डर्स ऐसे नहीं होंगे, ये रिलैक्स्ड है, इस तरह से मुट्ठियां बाहर की ओर, ठीक है? अच्छा, इसमें क्या होगा, मैं आपसे जब कहूंगा ब्रीथ इन, तो आपकी बाहें ऊपर जाएंगी सांस भरते हुए और हथेलियां खुल जाएंगी, ठीक है? और जब मैं कहूंगा ब्रीथ आउट, तो सांस छोड़ते हुए, जोर से सांस छोड़ते हुए वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है? सो ब्रीथ इन आउट, इन आउट. ओके, क्लियर है ये? फिर से फ्रीज हो गई स्क्रीन, माय गॉड. हाँ, सो इसमें क्या हो सकता है, कुछ लोगों का अगर नेजल पैसेज क्लियर नहीं है तो कुछ तो मलबा बाहर आ सकता है. सो यू कैन कीप अ टिश्यू और अ हैंकी विद यू so that you don't end up decorating the floor or whatever surface is in front of you. अच्छा, आप में से कोई अगर ऐसा है जिसको थोड़ा सा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इसको जेंटली करेंगे, बहुत जोर से नहीं करेंगे, और जितने काउंट में दे रहा हूं उतने ना करके, जितना आप कंफर्टेबली कर पा रहे हैं उतने करेंगे. ओनली दोज पीपल हु हैव अ हार्ट कंडीशन और सम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम. बाकी सब लोग अच्छे से जोश में करेंगे, ठीक है? सो हम इसके 3 राउंड्स करेंगे. पहला राउंड आंखें खोल के मेरे साथ करेंगे देखते हुए, ठीक है? सो लेट्स ऑल सिट कंफर्टेबली विद आवर बैक स्ट्रेट एंड शोल्डर्स रिलैक्स्ड. लेट्स टेक पोजीशन. ढीली मुट्ठियां कंधों के आगे, कोहनियां शरीर के पास. लेट्स टेक अ नॉर्मल डीप ब्रेथ इन एंड आउट. वन मोर नॉर्मल ब्रेथ इन and exhale. Now with full energy, doing it together, breathe in, out, in, out, in, 3, in, 4, in, 5, in, 6, in, 7, in, 8, in, 9, in, 10 and relax. आंखें बंद कर ले, दोनों हथेलियां घुटनों पे आकाश की ओर खुली हुई. Just observe your breath. With your eyes closed, hands on your knees, open towards the ceiling, and just observe your breath. Let's get ready for the second round. आंखें बंद ही रखते हुए करते हैं इस बार. Second round. Let's take position. Loose fists in front of your shoulders. Elbows close to your ribs. A gentle smile on your face. वो जो एक किलर स्माइल देते हो ना सेल्फी लेते हुए, वो वाली. मुस्कुराते हुए एक साधारण लंबी गहरी श्वास लें और जाने दें. One more deep breath in and let go. With full force, doing it together, breathe in, हाथ ऊपर जाएंगे, out, original position, in, out, in, 3, in, 4, in, 5, in, 6, in, 7, in, 8, in, 9, in,
10, in 11, in 12, in 13, in 14, in 15 and relax. आंखें बंद ही रखें, हथेलियां घुटनों पे, आकाश की ओर खुली हुई. Just observe the flow of energy in the body. शरीर में जो ऊर्जा का प्रवाह है उसके प्रति सजग हो जाएं. Let's get ready for the last round of Bhastrika. एक बार फिर से ढीली मुट्ठियां कंधों के आगे, कोहनियां शरीर के पास. With a smile, take a normal deep breath in and exhale. One more normal breath in and breathe out. Now with full enthusiasm, doing it together, breathe in, out, in, out, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 11, in 12, in 13, in 14, in 15, in 16, in 17, in 18, in 19, in 20 and relax. आंखें बंद ही रखें और comfortably बैठेंगे. I'll give you few instructions which we'll follow just sitting comfortably with eyes closed without moving the body. Let us all become aware of our breath. देखें आपकी श्वास की गति कैसी है इस समय. आंखें बंद ही रखते हुए एक लंबी गहरी श्वास लें और जाने दें. One more normal breath in and exhale. Let us all become aware of the environment and the surroundings. अपने वातावरण और परिसर के प्रति सजग हो जाएं. आंखें बंद ही रहेंगी. वातावरण में जो भी आवाजें हैं उनके प्रति सजग हो जाते हैं. It may be the sound of your fan or air conditioner. It may be the sound of someone talking or the birds chirping. जो भी आवाजें हों उन सभी आवाजों को स्वीकार कर लें. Let's become one with the environment. Keeping your eyes closed, take one more deep breath in and exhale. Become aware of your body. अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं. This body is a beautiful gift of nature to us. हमारा शरीर सृष्टि द्वारा दिया गया एक सुंदर उपहार है. Let's honor our body. अपने शरीर का सम्मान करें मन ही मन.
Relax your shoulders. Relax your arms. Relax your legs and feet without moving your body. Relax all your facial muscles. चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें. Relax your forehead, your cheeks. Relax your whole body, पूरा शरीर. एक लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर. One more deep breath in and gently let go. Let's become aware of the thoughts. आंखें बंद ही रखते हुए अपने विचारों के प्रति सजग हो जाएं. Good thoughts or not so good thoughts, simply become aware of them. कैसे भी विचार हों, केवल उनके प्रति सजग होना है. Do not resist any thought. एक लंबा गहरा श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर. Now let's become aware of the feelings. आंखें बंद ही रखते हुए अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाएं. Pleasant or unpleasant, simply become aware of your feelings. अच्छी या बुरी, जैसी भी भावनाएं हो, केवल उनके प्रति सजग होना है. एक साधारण लंबी गहरी श्वास लें और धीरे धीरे जाने दें. Just observe your breath right now. देखें इस क्षण आपकी श्वास कैसी है. Is it long and deep? Or is it so subtle that you can't even feel it? Just observe it. एक लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर. एक और गहरा श्वास लें और जाने दें. Once again,
Let's bring our attention back to our feelings. एक बार फिर अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाएं। Bring your awareness back to the thoughts. अपने विचारों के प्रति सजग हो जाते हैं। Let's become aware of our body. एक लंबा गहरा श्वास लें और श्वास छोड़ते छोड़ते शरीर को ढीला छोड़ दें। Relax your body completely. One more deep breath in. And as you exhale, become aware of the environment and the surroundings. वातावरण और परिसर के प्रति सजग हो जाएं। And whenever you feel complete, taking your time, slowly and gradually, you may open your eyes. धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। Welcome back. So, कोई शेयर करना चाहेगा? How are you feeling right now? If anyone would like to share. मोनू, आप बताना चाहेंगे? सर एकदम नींद सी आने लग गई थी। अभी कैसा है? अभी बिल्कुल रिलैक्स, एकदम अच्छा सा लग रहा है। जी, मन शांत है? जी बिल्कुल। और शरीर भी हल्का लग रहा है? एकदम हल्का सा लग रहा है। Very nice. Anurag, would you like to share? Sure, I think the eyes को काफी relaxation मिला। Yeah. How's the mind right now? In your control. In my control. Now, how's the mind right now? At this very moment, how are you feeling right now? Calm and composed, of course. Calm and composed, yeah. Urvashi, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? Right now, I'm not thinking about multiple things. That's is there. Yeah. It's not running here and there. Yeah. So it's right here with you. Yes. Are you feeling lighter on the body level as well? Yes, I must say. और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? मैं बाकी लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ. If anyone else would like to share their experience and how you're feeling right now, I would be more than happy to hear that. Okay. The other people seem to be in a slumber. Okay. So this is what happens when you use your breath. तो क्या होता है कि आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ता है और आपका मन को भी शांत। अभी हमने बहुत एक छोटी सी प्रक्रिया की। I mean, we sat for just a few minutes. We took a few breaths in and out, and we are feeling relaxed both on mind and body. ऐसा कहते हैं कि जब मन को विश्राम मिलता है तभी शरीर को भी विश्राम मिलता है। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम रात को सो के उठते भी हैं सुबह, तब भी हमें पूरा विश्राम नहीं महसूस होता। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड कंटिन्यूअसली चल रहा है। Isn't it? Yes or no? जब मेरा मन शांत होता है तभी मेरे शरीर पे भी एक अच्छा विश्राम का प्रभाव पड़ता है।
So it is extremely important for even body to be healthy and happy that your mind is relaxed, and जो हम concentration, focus और उन चीजों की भी बात करते हैं, it has to be restful alertness. अभी इस समय आप लोग aware हैं, आपकी awareness है इस समय, लेकिन क्या आप इस समय पैनिक मोड में हो? नहीं. अभी इस टाइम में you can work efficient, you can be more effective, you can communicate better in this state of mind, ना कि एक agitated state of mind में. जब आप agitated state of mind में होते हैं, that's when everything goes topsy-turvy. So I need to have this happy and calm state of mind, because a calm, meditative, happy state of mind is the biggest source of energy, and at the same time it gives you all the skills to do well in life. तो अभी आज के समय में देखो क्या हो रहा है ना, इस समय पर इतना ज्यादा परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं जिसके कारण मन का विचलित होना बहुत स्वाभाविक है. It is very very natural to have an agitated state of mind. तो ऐसे में मेरे को कुछ ऐसा आना चाहिए जिसके चलते वो जो स्ट्रेस मेरे अंदर जमा हो रहा है उसको मैं फ्लश आउट कर सकूं और मेरे मन को शांत रख सकूं. So that's where all these breathing techniques and meditation comes in. So if you are able to learn these things and take time out of around 30-35 minutes in a day for yourself, it will set the rest of the day for you to be how you want it. So that's the power of breath and meditative state of mind. और दूसरा, मैं आप इससे पहले कि मैं इसको खत्म करूं, क्योंकि हम लोग लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में है, वर्क फ्रॉम होम है, सब कुछ है, तो इसमें मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि बॉडी लेवल पे आपके साथ दो चीजें होंगी. या तो बॉडी आपकी रेस्टलेस होगी या लेथार्जी होगी. हमें बॉडी को कैसा रखना है? माई बॉडी नीड्स टू बी लाइट. It should neither be restless nor be lethargic. तो हिस्सा है जो हम खाते हैं. तो खाने में हमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना है. क्या? सही समय पे, सही मात्रा में. We need to be a little careful that we eat at the right time in right quantity. अभी देखो, छोले भटूरे खा के एक ग्लास लस्सी पी के उसके बाद ऐसा तो नहीं लगता ना आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड? नहीं लगता ना. बट व्हेन यू हैव फ्रेशली कुक्ड होम फूड, वो खाने के बाद, ताजा ताजा भोजन करने के बाद कैसा लगता है? यू फील लाइट एंड एनर्जेटिक. सो राइट क्वांटिटी एट राइट टाइम. इसी तरह से, अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा एक्सेसिवली तला हुआ भी ना खाएं, एक्सेसिवली स्पाइसी भी ना खाएं, और स्टेल फूड ना कंज्यूम करें. स्टेल माने बासी. ये 3 चीजों का जरूर ध्यान रखें. हैव एज मच फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. घर का बना जो भी अच्छा खाना है, जो भी खा सकते हैं वो खाएं. तो कहते हैं खाने का प्रभाव आपके शरीर पे और मन पे दोनों पे है. जैसा अन्न वैसा मन, और डेफिनेटली शरीर पे तो है ही. सो फूड. सेकेंड थिंग इज स्लीप. अभी स्लीप भी कैसी होनी चाहिए? क्या है? Amazon प्राइम, PUBG और पता नहीं क्या क्या, जो हमें रात को सोने नहीं देता. लेकिन सही समय पे नहीं सोएंगे तो क्या होगा? हमें सुबह उतनी ऊर्जा नहीं मिलेगी. We'll get up grumpy, inefficient, ineffective as a result. तो क्या करने की जरूरत है? Sleep at the right time for right number of hours. थोड़ा सा अपने जीवन में वर्कआउट को लेके आए. बॉडी लेवल पे हमें फिटनेस के लिए क्या चाहिए? थोड़ा सा वर्कआउट हो, वॉक हो, योगासन हो, कुछ ऐसा करें, सूर्य नमस्कार करें. Set it into your routine, integrate it, make a schedule. It is very very important that we do things on time in a little bit of discipline. I'm not saying become an Akshay Kumar, wake up at 4 in the morning and go to the beach and do gymnastics. I'm not saying that. लेकिन थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा इन चीजों को रेगुलेट करने से क्या होता है? हमारे शरीर में ना 2 हार्मोन्स होते हैं, एक अच्छा वाला और एक नॉट सो अच्छा वाला. एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्टिसोल. ठीक है?
नहीं, एक होता है डोपामीन। ये आपने जो शब्द सुना होगा डोपिंग, ये डोपिंग शब्द जो है या डोप शब्द जो है ये कहां से आया है? डोपामीन हार्मोन से। जब जब हम ये पबजी जैसी चीजें खेलते हैं या कोई ऐसी चीजें जिसकी हमें लत लग जाती है, नेटफ्लिक्स है, ये है, वो बेसिकली क्या कर रहा है? इट्स अ प्लेजर हार्मोन। वो प्लेजर हार्मोन सिक्रीट होता है हमारे अंदर और वो कहता है 5 मिनट और, 5 मिनट और, 5 मिनट और वो 5 मिनट करते करते कुछ घंटे बीत जाते हैं, वो प्लेजर हार्मोन हमारी स्लीप की भी वाट लगा देता है। तो उससे क्या होता है? हमारा आगे का दिन खराब होता है और हमारा शरीर भी अफेक्टेड होता है। वहीं एक दूसरा, ये हमें क्या करता है डोपामीन? शॉर्ट टर्म प्लेजर बट लॉन्ग टर्म पेन। लेकिन कॉर्टिसोल होता है दूसरा हार्मोन विच इज कॉल्ड हैप्पीनेस हार्मोन, विच गिव्स यू शॉर्ट टर्म पेन बट लॉन्ग टर्म गेन। वो क्यों? वो कब होता है? जब आप थोड़ा वर्कआउट करते हैं, थोड़ा प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, ये सब चीजें जब आप करते हैं तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है। नॉट कॉर्टिसोल, सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम नेमिंग इट रॉन्ग, बट देयर इज अ हैप्पीनेस हार्मोन विच इज कॉल्ड cortisol is the stress hormone. I'm sorry. Cortisol is the stress hormone. Dopamine is pleasure hormone, and then there is another one which is the happiness hormone. So happiness hormone secrete hota hai when you have some discipline in life. So it is my sincere request to you all that आप थोड़ा सा इसको अपने लाइफ में इम्बाइब करें, कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स सीखें, अपने माइंड के बारे में थोड़ा सा और जाने, बॉडी के बारे में थोड़ा सा और जाने, और इसको अपने लाइफ में इंटीग्रेट करके बिकम बेटर। दिस टाइम पीरियड इज वेरी वेरी गुड टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड बिकम बेटर एज अ पर्सन एंड एज अ परफॉर्मर। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू। Mind matters because a happy mind can carry an unhealthy body, but a healthy body, I mean, you can have a healthy body only when you have a happy mind. So that's what I wanted to share with you. And I wanted to share this experience also with you. I hope you have had a glimpse of what a breathing process and a meditation can bring about and add that value to the life. So हम लोग आमतौर पे आर्ट ऑफ लिविंग में एक ऐसा वर्कशॉप करते हैं जहां इसको एक्सटेंसिवली हम एक बहुत पावरफुल ब्रीदिंग प्रोसेस सिखाते हैं आपको, जिसका नाम है सुदर्शन क्रिया, एंड वी गेट टू नो अ लॉट अबाउट आवर माइंड, हाउ वी कैन डील विद इट better with our situations and people through activities, interactive processes and breathing techniques which also detoxify our system. So if any one of you would like to join us for that 4-day beautiful journey, then we have one coming up from 2nd to 5th. अगर आप उसकी कोई डिटेल्स जानना चाहें, you can definitely ask कोटनी जी, मैं कोटनी जी के साथ शेयर कर दूंगा, and it will be a great value addition to your life. So I welcome you all for that. Thank you so much for your time. I hope I have been able to add some value in this 1 hour and few minutes. Thank you so much. Thank you. Thank you, Naveen ji. Thank you so much. You're welcome. Thank you, Naveen ji. You're welcome. हाँ